Yeah. Yeah. Hello, babe. Yeah. I've been waiting for the past hour. Where are you? Oh, no, I get it. I get it. You're right. Okay. Bye. You and me, we made a vow, for better or for worse. I can't believe you let me down, but the proof's in the way it hurts. For months on end, I've had my doubts, denying every tear. I wish this would be over now, but I know that I still need you here. You say I'm crazy, but you don't think I know what you've done. But when you called me baby, I know I'm not the only one. You've been so unavailable. Now, sadly, I know why. Your heart is unobtainable, even though Lord knows I've tried. You say I'm crazy, but you don't think I know what you've done. But when you call me baby, I know I'm not the only one. I've loved you for many years. Maybe I'm just not enough. You've made me realize my deepest fears by lying and tearing this up. You say I'm crazy, but you don't think I know what you've done. But when you call me baby, I know I'm not the only one. I know I'm not the only one. I know I'm not the only one. And I know, and I know, and I know, and I know, and I know. I know I'm not the only one. Thank you. Thank you. You may have a seat. Yes, thank you so much. I was consulted in chambers yesterday by Mrs. Clark, leading for Lady Council of South African State, Cape Town, together with Ms. Karigwabo, thank you, and then Advocate Solomons and members of the defense team. To indicate that a plea and sense agreement had been handed into in terms of section 105, capital A, correct? Thank you. Mr. Luyanda Botha, you heard and understood the charges against you? Okay. I see that you have pleaded guilty. I just want to ask you a few questions to satisfy the requirements of the plea and sense agreement. Thank you. I would like you to relay the incident of that day. Please go ahead. Thanks. Yes.
I understand. Yes. Okay. Next, please. Yes, how can I help you? Miss or Mrs.? Miss Queenene. Yebo. What are you tracking, ma'am? Parcel. Parcel for? Online shopping. Okay, wait. Hi. Nothing. No parcel here. Yeah, you can go and come back. I'll phone you when your parcel arrives. Okay? Here. Intombazane imuhle. Yeah. You know women are my weakness, man. Hello. Miss or Mrs. Miss Uinene. Yeah, your parcel is here. Okay, yeah, today is Saturday. You can come at 1 o'clock. It's fine. Yeah, and bring your sleep when you come, eh? Okay. Yeah, kiabonga sis. Hi. Hi, Mr. Bertha. I'm so sorry I'm late. I'm just looking for that slip. Yeah. Uinene. How are you? You okay? Yeah, give me that slip. Why are you moving back? Am I going to hurt you? Stop it, man. What are you doing, Mr. Bertha? You don't move back. I like you, so you like me back. No! No! Where are you running? Come here. What are you screaming for, man? Stop it. I don't know what you're screaming for, man. What you screaming for? Stupid girl, stop it. Stupid girl. These girls. These girls are so heavy. Yeah, Boots, can I park here? I need to put some boxes in my car, man. I won't be long. And then I drove in a van to a dump site, and I bought petrol and I burnt her body. Yes, there were no remains. Yes, yes. Okay. And you have no regrets? I guess not. Okay, in the matter of the state versus Luyanda Botha, the state alleges that the accused is guilty of the following offenses: rape as contemplated in Section 3 of the Criminal Law Sexual Offenses, rape attempt of Criminal Law Procedure Act, murder,
led with the provisions of Section 51.1 Criminal Law Amendment Act and defeating the ends of justice. Each of these offenses, the punishment would be 25 years in prison, which is 75 years in total, and 5 years extra for defeating the ends of justice. The first 25 years, there will be no parole. Mr. Bozak, would you like to tell Ms. Mina and his family anything? You can conclude. Please go ahead. No, I have written a letter. I don't want to say anything verbally. I will communicate the letter via my lawyer. Yebo. So I was super excited about meeting my girls for cocktails, but Mandy and Suru are not coming. And my bestie Seeds, she's late as usual. So I've just been waiting, finishing the somras of the world. And I'm thinking I'm going to leave a little early so that I can make her wait. Yeah, man. I mean, oh, there she is. Hey, Seeds. Come, come. Oh, sit. Why so late? Looking gorgeous, huh, by the way. What? Love and Kush? Acha, right. Admissions. Are they going to that Hariputtar Academy? Wow, that's supposed to be the best, no? Yeah, all the wands and all so difficult. The magic. Thank God in our times we had to only depend on our own magic. Acha, listen. Mandy's Pushvahan is still in the garage, yeah. Yeah, please tell your friend Jatayu to take that curse off. She can't party with us, man. Seriously. Acha, what are you going to drink first? I'm having that lovely somras, and they have this amazing Amrut twist. You want that? No, don't be a bore. You hamisha carry your Shabri ke bel ka wine, homegrown and all. Try this now, it's good. Okay, fine. Excuse me. Could you please get this goddess's aphrodisiac, wine from her chariot? Yes. That'll be all. Actually, you can also get us that Ram Laddu. You know, the fusion one with the sticky rice? No, no, no. Absolutely no sugar. Just put some dates in it. And you know our usual. Thank you. What? Are he was so cute. Did you see his tush? Acha, listen, what happened to Surpu? Wow. Her nose job is done? Fantastic. Shut up. She's looking so good. Oh no, her Tinder account has gone crazy. And she's busy every night. Good for her, man. Listen, but she can't stand us up all this. All this is not cool. But I'm really glad. Listen, did I tell you about the sensation? What happened? One sec. Here, your wine. You'll need this. Should I pour it for you? Okay. Yeah, did I tell you about Duru's party? You know the gambling party they have? Yeah, so all the boys were there and they always want me to go. So I tagged along with them. And for some reason, Duru pulls me into it and I'm supposed to do an item number. Oh my God, babe. Yeah, seriously, wo to thank God I had this amazing universal designer, you know. Yeah, babe, I would have had such a major wardrobe malfunction. Yeah, but thank God, it was perfect. Yeah. Acha, this you like? This is Nax and Saidu's creation, na? Yeah, they've started their own line. You don't know it, but just look at the detailing, dude. They're so good with colors and all. You know, you need to be in touch.
with that side, that feminine side of you. You know they're gay, right? Yeah. To be a designer, you have to be. Why would I have a problem? They make the best of friends. Yeah, and then they're designing such cool stuff. I have the best of both worlds. I actually have the best of 5 worlds. For now, yeah, babe. But I'm damn irritated with these boys, yeah? Like, why do they keep having to pull me into their games? Like, let me just be by myself, fly solo, you know? Fly together. Did I tell you? Arju has booked for me and him a trip for skydiving to guess where? Interlaken, Switzerland. Can you imagine? First of all, skydiving and then Switzerland. Oh my God. उसका ना मेरे लिए निशाना हमेशा सही जगह लगता है. Yeah, man, I'm super happy. You know, I just thank the universe all the time because the universe also knows, you know, that I need variety. Yeah, babe, variety is the spice of life. Yeah, and I have 5. Hmm. Acha, listen, this Chewbacca has been calling. Are Chewie, the Wookiee from your Vanar Sena. Yeah, ever since that Sanjeevani happened, no? He's gotten fully into this herbal luxury Ayurvedic spa. Yeah, so he's booked me for an all-day package. I love trying these things. Yeah, so this I'm also trying this new Uber Magic carpet, you know. Yeah, so it'll be on its way. Yeah, you don't know they've started. So I'm going for that. Listen, he's been calling for a bit. So I've taken care of everything. Don't worry about the bill and all. Yeah, yeah. Sure, babe. I'll introduce you to them all. Okay, I'm off. Hmm. तो अपना नींबू शॉट वगैरह कर लेना, ठीक है? बाय. ये तो यहाँ हॉस्पिटल के इलेक्ट्रॉनिक बेड पे सो रहे हैं ना, ये मेरे चाचा हैं. एकदम खुश मिजाज और बढ़िया किस्म के इंसान है. खाने पीने के तो बहुत शौक है, और मिठाई खाना तो पूछो ही मत. एक बार दे दी तो बस. आज इनको ना ऐसे नाक के पाइप के जो खाना दे रहा हूँ ना, अच्छा नहीं लग रहा है. उनके ना फेस में ना एकदम सूजन हो गई, बहुत बड़ी स्वेलिंग हो गई, पता है. और ये यहाँ से ना स्टिचेस यहाँ से लेकर चेस्ट तक जा रहे हैं. इतना सा भी हिलते हैं ना तो बहुत दर्द होता है. और ये मेरी चाची पिछले 2-3 दिन से कुछ खाया नहीं होगा. बस कब से भगवान को ही चालू है, प्लीज सब ठीक कर दो, सब ठीक कर दो. खैर, मैं आपसे बाद में बात करती. चाची, चाची, डॉक्टर आके गए क्या? हाँ? नहीं, डॉक्टर कहाँ है? लेकिन नवीन, तू सुन ले, डॉक्टर आएंगे ना तो तू डॉक्टर को सब पूछ लेना. पूरी रात सोए नहीं है ये, पूरी रात. जब देखो खांसी आ रही, कान सूजन इतनी बड़ी सूज के पूरा मुंह कुप्पा हो गया एकदम. तू सब पूछ लेना डॉक्टर को कि क्या हुआ, कि ऐसे कि अब तो ऑपरेशन हो गया, अब तो ठीक हो जाना चाहिए ना. मुझे लगता है डॉक्टर आ गए. एनके, एनके उठो बच्चे, उठो उठो उठो. हाँ, आराम. डॉक्टर आया, डॉक्टर आया. चलो उठो. ये सब नरेंद्र भाई, अभी कैसा है? कैसा लग रहा है? टेल मी. तो वो सबसे फर्स्ट तो डॉक्टर, हम इनको नोज के पाइप के थ्रू जो भी दे रहे हैं ना, वो ये ले नहीं पा रहे.
उनको ना जैसे ही देते हम खांसी आ जाती और सब बाहर आ जाता। वो बहुत इरिटेट कर रहा है क्योंकि पूरी रात खांसी चल रही है। और फिर उसके बाद ना डॉक्टर, जब ये जो स्वेलिंग है ना डॉक्टर, ये it is not, I don't know, मतलब is there something wrong, is it something to worry, because we are very scared about that. Navin, his chest flap was very heavy, you know, बहुत heavy, तो इसलिए it is looking so bulgy, but nothing to worry, it will reduce with the radiation. Still it's going to be there, I'm telling you. And नरेंद्र भाई, आपको अंदर लेना पड़ेगा। आप क्या कर रहे हो, यहाँ से लेके ना उसको अंदर नहीं जाने दे, यहाँ रुका रहे, तो सब दर्द जमा हो रहा है, इसीलिए आपको खांसी आ गई। हाँ, आपको मैं पता है, मुझे यहाँ पे स्टिचेस है इसलिए पेन हो रहा है, बट करना पड़ेगा, ठीक है। अभी के लिए मैं आपको सक्शन देके सब बाहर खींच लेता हूँ, आपको बेटर फील होगा। नर्स, गिव मी सक्शन। अरे ये क्या है तुम सर, पेशेंट को कंफर्ट कराना चाहिए ना, तुमको सक्शन नहीं आता देने, मेरे लिए वेट करना जरूरी है। ओपन योर माउथ। अच्छा देखो, अभी थोड़ा पेन होगा, ठीक है, पर हम लोग करेंगे, धीरे धीरे करेंगे। ओके, हाँ, बस 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 बस, आराम से। बस 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 बस, इज वेरी स्ट्रॉन्ग ना, रियली, उनका रिकवरी भी बहुत अच्छा है। ओके, देखो मैं आपको मंडे को मिलता हूँ, ठीक है। एंड लव इट, यू बीट मी इन द ऑफिस। चल, डॉक्टर बुला रहे हैं, जल्दी चल। जब भी डॉक्टर ऐसे अलग से ऑफिस में बुलाते हैं ना, बहुत डर लगता है, बहुत डर लगता है। ओके, so Lavin, this is his frozen section report. It says that all his nodes have been completely removed, so you don't have to worry about that. वो हमने जैसा प्लान किया था वैसा ही हुआ है, ठीक है। देखो यहाँ पे ना उनके जो भी ट्यूमर था ना, वो ट्यूमर यहाँ से यहाँ आ गया था, तो उसने पूरा का पूरा बोन सड़ा दिया, ठीक है। तो हमने वो पूरा बोन सहित ट्यूमर निकाल दिया है, पूरा जॉ बोन रिप्लेस कर दिया। ये देखो, ये ऐसा एल शेप, ठीक है। तो पूरा जॉ निकालना पड़ा, उसको बचाने का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि वो यहाँ तक आ चुका था ट्यूमर। अब क्योंकि ये स्टेज 4 है, देर आर चांसेस कि और भी है जो हमको नहीं दिख रहा है, विच आर नॉट विजिबल टू द नेकेड आई। डॉक्टर, स्टेज 4 नहीं है, स्टेज स्टेज 2 है ना लविन, स्टेज 2 है। टू स्टेज था ना, तो बोला था ना 2 स्टेज है ना। हाँ, डॉक्टर ने चाची को स्टेज 4 के बारे में बता दी। वो क्या है ना कि हमने घर में ना हमारे चाचा को, चाची को और सभी को घर में स्टेज 2 बताया था। क्या है कि स्टेज 4 सुन के ना सारी उम्मीदें खत्म हो जाती है। अब डॉक्टर ने बता दिया, मैं कैसे हैंडल करूंगा मैं नहीं जानता, बट आई विल ट्राई। अरे चाची, आप एक बार स्टेज जाने दो, आप एक बार डॉक्टर की बात तो सुन लो, डॉक्टर क्या बोलना चाहते। हाँ, एक बार वो समझ लेते हैं, प्लीज, एक थोड़ा टाइम दो, थोड़ा टाइम। लविन, यू शुड हैव टोल्ड। ओके देखो, स्टेज 4 है तो चांसेस है कि वो वापस आ सकता है, पता है, मतलब देर आर मोर विच आर नॉट विजिबल टू द नेकेड आई, सो वील हैव टू रिमूव इट विद 6 कीमो एंड 30 रेडिएशंस। हाँ, 6 कीमो और 30 रेडिएशंस देंगे, उसके बाद 70-30% वी कैन बी श्योर कि वो नहीं आएगा वापस। 70% रीअकर होने का चांसेस है, 30% रीअकर नहीं होगा। हमको ये मान के चलना है
कि हम वो 30% में है, 30% में रहकर ही ट्रीटमेंट कराना है। हाँ, डॉक्टर आप, हमने सर्जरी करवाई, उसके बाद आप कीमो दे रहे हो, रेडिएशन भी लगेगा, 30 रेडिएशन, फिर भी हम श्योर नहीं हो सकते कि मतलब अब हम सेफ हो गए, ऐसा नहीं। Listen, Lavin, this is how it is. Okay, this is a serious disease. You have to understand. And at stage 4, I can't tell you if any doctor can tell you that it is sure that it won't come. So yeah, let's hope positive. Patient is strong. उनका will power बहुत strong है. तो आई एम श्योर कि वो रिकवर कर लेंगे. अभी रिकवरी भी अच्छा और ऑपरेशन बहुत अच्छा हुआ है. सारे नोट्स निकल गए, तो हम पॉजिटिव रहते हैं. ठीक है, ओके. नमो हरिंतरम नमो सिद्धाणम नमो हरिण नमो जड़ मूलो सत्सवडम सुपंच नमो करो जो पाप नाश को मंगला नित्य सर्वसिक परम भवै मंगलम. डॉक्टर स्टेज 4 है तो फिर भी हो सकता है ना. लविन तो मुझे स्टेज 2 बोल, अभी स्टेज 4 में 73 क्या बोल रहे हैं डॉक्टर? हाँ, क्या बोल रहे हैं डॉक्टर, क्या बोल रहे हैं? अरे चाची, आप स्टेज पे क्यों ध्यान दे रहे हो? डॉक्टर ने क्या बोला कि हमारे पेशेंट बहुत स्ट्रांग है, बोला ना उन्होंने, आपके सामने बोला ना. उनका विल पावर, चाचा का विल पावर बहुत स्ट्रांग है, तो वो खुद लड़ लेंगे. और ये कैंसर वैंसर को हम इधर ही उठा के फेंक देंगे, इधर कुछ लेकर नहीं जाना हमको. ठीक है, आप अभी चाचा अकेले हैं, अभी हम लोग को चाचा के पास जाना चाहिए ना, है ना. अब चलो एक बार मेरे साथ, भगवान पे भरोसा रखो. आप ये माला फेरो ना, ये फेरो, सब हो जाएगा. ठीक है, अब चलो. सॉरी डॉक्टर. चाची, आप चाचा के पास जाओ, मैं ये मेडिक्लेम का फॉर्मेलिटी करके आऊं. हाँ. हाँ सुनो, डॉक्टर ने ना चाची को ना स्टेज 4 के बारे में बता दिया है. हाँ, सब कुछ बता दिया है. और हाँ तो अरे ठीक है चाची, ठीक है भाई, स्ट्रांग है वो. मैंने उनके आगे थोड़ा लाइट ट्रीट किया है, तो तू भी ऐसे ही रख. और फिर डॉक्टर ने क्या कहा कि 70-30% चांस है, जब कीमो रेडिएशन करा लेंगे ना, एक तो 6 कीमो 30 रेडिएशन लगेगा, उसके बाद 70-30% चांस है कि वो वापस आ सकता है. तू रो क्यों रही है भाई? पागल है कि तू रो क्यों रही है? अरे तो अपने को तो स्ट्रांग रहना है ना, फिर हम लोग ही स्ट्रांग नहीं रहेगी तो फिर कैसे? मैं नहीं रो रहा हूँ, मैं नहीं रो रहा हूँ. ये लोग यार 70-30% के बाद भी श्योर नहीं हो सकते कि उसके बाद भी बोलते 70-30% लगेगा. अरे क्या, फिर क्या किया साइंस ने, क्या 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 यार? ऐसे हॉस्पिटल में सबके सामने रुला रहे यार. मेरे चाचा है वो यार, यार अपने चाचा है यार. मैं नहीं रो रहा हूँ, तू भी स्ट्रांग रहना एकदम. ठीक है, तू इधर आएगी ना तब चाची के आगे दिखाना मत कुछ भी. हाँ, मैं फोन रख रहा हूँ अभी. हाँ, मेरे को जाना है अभी. रोना रोना रोना. चाचा, डॉक्टर बोला फर्स्ट क्लास ऑपरेशन हुआ एकदम. हाँ, कोई टेंशन की बात नहीं है. थोड़ा बहुत वो कीमो और रेडिएशन लगेगा, इसके बाद सब फाइन एकदम. और पापा कल आए होंगे रात को मिलने, कुछ बोला उन्होंने? अरे कुछ नहीं बोला. कमाल है हम लोग. वो एक्चुअली क्या है ना कि हमारे घर में ना हम सब जेंट्स थोड़े अजीब हैं, एक दूसरे से बात ही नहीं करते. ना पापा मुझसे बात करेंगे, ना मैं पापा से बात करूंगा. पापा चाचा से बात नहीं करते, पापा दादाजी से बात नहीं करते, दादाजी पापा चाचा दोनों से बात नहीं करते. तो ऐसे हम एक दूसरे से बात नहीं करते, पर कोई झगड़ा नहीं है. रिस्पेक्ट है, अजीब टाइप की. तो वही प्रॉब्लम. कमाल है एकदम. बात तो करनी चाहिए ना, ऐसे ही एक पप्पू कैसा है, पप्पू क्या वजह है? ये कुछ मंगाना है क्या? ये हम्म.
मैं मम्मी पापा का पापा मैं चाचा को ये भी देख कर आ रहा हूँ। वो आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं। उन्होंने लिख के दिया, बोल नहीं पा रहे। पापा प्लीज पापा प्लीज प्लीज पापा छोड़ दो, क्योंकि आज तक ना आपने हम सबके लिए बहुत कुछ किया है। ये काम ना आप प्लीज खुद के लिए कर लो, प्लीज पापा। अब आपके बिना रहने अच्छा नहीं लगेगा। चाचा की हालत देख के आ रहा हूँ मैं भी। अच्छा नहीं है, बहुत दर्द होता है, बहुत पेन होता है, बहुत पेन होता है। प्लीज छोड़ दो इसे, ये अच्छा नहीं। मम्मी पापा को समझाओ, मैं नहीं बोल सकता। पापा को समझाओ प्लीज, प्लीज छोड़ दो। प्लीज छोड़ दो। भिक्षाम देहि। धन्यवाद माते, धन्यवाद। भिक्षाम देहि। कोटि कोटि प्रणाम माते, कोटि कोटि प्रणाम, धन्यवाद। आज तो बड़े सारे चावल इकट्ठा हो गए। एक काम करता हूँ ना, थोड़े से चावल पका लेता हूँ और बाकी के इस मटके में डाल देता हूँ। हाँ। ओ सखी सैया तो खूब ही कमात है, ओ सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाई जात है। हो उषा बासमती, हो उषा बासमती धान मरी जात है, महंगाई डायन खाई जात है। अरे महंगाई डायन चाहे कितना भी खाई जात, आज तो मैं भी पेट भरकर खाना खाऊंगा। आहा, जय हो प्रभु। जय हो। जय हो। लेकिन ये जो चावल बच गया है, इसका क्या करूं? इसे बेचकर एक बकरी खरीद लूं क्या? हाँ, फिर वो बकरी दूध भी तो देगी। फिर मैं उस बकरी का दूध बेचकर और उस बकरी को भी बेचकर एक गाय खरीद सकता हूँ। ओह, जय हो गैया मैया की जय हो। और फिर वो गाय मुझे अपना बछड़ा भी तो देगी। फिर मैं उस बछड़े को भी बेचकर एक भैंस खरीद लूंगा। हाँ, भैंस। फिर मैं भैंस के दूध से घी भी बनाऊंगा और दही भी बनाऊंगा, पनीर भी बनाऊंगा और इन सब चीजों का व्यापार करूंगा। और फिर मैं अपनी भैंसिया पर बैठकर साथ वाले वो जो तालाब है उसमें भी तो जाऊंगा मैं। मजे करूंगा। तो यहाँ क्यों रुकूं? फिर मैं अपनी भैंस को भी बेचकर एक घोड़ा खरीद लूंगा। हाँ, घोड़ा। और फिर मैं जब उस घोड़े पर बैठकर राज्य में निकलूंगा ना, तो सब कहेंगे, अरे देखो देखो कैसे ब्राह्मण राज अपने श्वेत जैसे घोड़े पर बैठकर जा रहे हैं।
अरे मेरा औहदा ना बढ़ जाए तो नाम बदल देना। फिर मैं उस घोड़े को भी बेच दूंगा। उस घोड़े को बेचकर मैं ढेर सारा सोना खरीद लूंगा, सोना। हाँ, सोना। और उस सोने से मैं राज्य का सबसे सुंदर घर खरीदूंगा, जिसके चार चार पंख होंगे, ऐसा घर। और उस घर में मैं सोने का तख्त, सोने के किवाड़ बनवाऊंगा। हाँ, और उस सोने के तख्त पर, हाँ, ऐसे लेटूंगा, ऐसे, एकदम। अरे ऐसा घर देखकर तो ब्राह्मणों की लाइन लग जाएगी। सब अपनी पुत्रियों से मेरा विवाह कराना चाहेंगे। लेकिन मैं क्यों करूं विवाह? मैं तो स्वयंवर रचाऊंगा। सारी कन्याओं से सारे कार्य करवाऊंगा, सारे कार्य। और जो सबसे सर्वगुण संपन्न होगी, सुंदर होगी, उसी से विवाह कर लूंगा मैं। और उसी के साथ अपनी घर बसाऊंगा, गृहस्थी बसाऊंगा। और फिर वो मुझे एक पुत्र भी तो देगी। हाँ, मेरा पुत्र। उस पुत्र को मैं तक्षशिला के महाविद्यालय में भेजूंगा। उसको मैं श्रेष्ठतम ज्ञानी बनाऊंगा। लेकिन जब वो श्रेष्ठ ज्ञानी अपने ही पिता से बदतमीजी से बात करेगा, तो मैं जाऊंगा अपनी धर्मपत्नी के पास। कहूंगा उसे, अरे देखती है तेरा पुत्र कैसे बदतमीजी से बात कर रहा है अपने पिता से। अरे ऐसे ज्ञानी को तो मैं अपनी जूते की नोक पे भी ना रखूं। अरे लात मार के भगा दूंगा उसे। दिखाऊं तुझे कैसे, दिखाऊं तुझे। मेरा पुत्र, मेरा घर। अरे गधे, उल्लू के पट्टे गधे, कुछ किसी काम का। अरे खुद ही को पेट में चढ़ा दिया तूने। कैसे भूल गया कि सिर्फ इंसान है तू? हे भगवान। हाय रे फूटी किस्मत। आज की खबर में कल यानी 9 दिसंबर को एक भयानक खूनी जिसको अजात के प्यासा के नाम से जाना जाता है, वो सेक्टर 17 की पुलिस डिपार्टमेंट में से भाग चुका है। ये रही घटना की सीसीटीवी फुटेज। हो खुशाली, ओनली 1 वीक लेफ्ट. एकच आठवडा बाकी आहे. जेवण पाणी बरोबर कर. बरोबर. हो खुशाली, काम आहे मला आता. बरोबर. सर, रिपोर्ट आली आहे ह्याची. नाव गिरधर त्यागी, 36 वर्षांचा आहे सर. सर, साल्याने 20 मर्डर केले आहेत सर. ऑल फिमेल, ऑल प्रेग्नंट. हा, पाणी लगेच आणतो, पाणी लगेच आणतो सर, लगेच आणतो पाणी. क्या रे मादर चोद, 20 मर्डर किया तूने आज साले? 19 किया साहब, 20 नहीं किया, सिर्फ 19 किया. साला राक्षस आदमी है तू. हाँ, काय को मारा उनसे औरतों को? चला, कुछ भी क्या सवाल पूछ रहे हैं आप साहब? साहब एक बात बताओ, आप मेरे को एक साहब बता, आप जब ये ड्यूटी पे आते हो उसके पहले गांजा मार के आते हो क्या साहब? हाँ, पहले मार के आते हो क्या? साला कुछ भी. एक तो आपका रिपोर्ट चुतिया लिखेला है, ऊपर से आपका सवाल भी गलत है. नहीं, मैं निकल जाता हूँ ना सब. मैं आएला काय को इधर, मैं आया काय को है. सर जाने दो साहब, अपने को ना बाद में बहुत बड़ा काम करने का है, बहुत बड़ा. तो मैं क्या करता हूँ ना, आपको मेरा टॉप से स्टोरी बताता हूँ, एकदम स्टार्टिंग से. मेले में था, 16 साल का था. अपन अपने माँ और छोटे भाई के साथ गया था. अपना छोटा भाई अपना पंचर है साहब. अपना बाप बचपन में गुजर गया, फिर भी माँ प्रेग्नेंट. अभी कैसा वो मत पूछो, जाने दो. तो जब भी हम मेले में था ना साहब, अपने को एक बहुत सुमड़ी में ना बुड्ढा मिला. वो बुड्ढा मेरे को बोला ये खा. बोला क्या है? बोला ये खा. बोला क्या खा? वो बोला ये मांस खा.
तो जब ये वो मास्क को देखा ना साहब, वो पूरा ब्लैक मास्क था सर, पूरा काला मास्क, पूरा काला। तो बोला ऐसा कैसा है ये मास्क? वो बोला चाइनीज है। बोला ठीक है यार, चाइनीज तो अपने को रोज खाने को मिलता नहीं है, तो मैं खा लिया साहब, सीधा निकल गया। जैसा वो मास्क निकल लिया ना साहब, मेले के बीचों बीच पूरा टी शर्ट पे पैंट पे पूरा उल्टी हो गया साहब, पूरा खून का उल्टी। मैं बहुत डर गया साहब। मैं मम्मी के पास गया और मम्मी को बोला ये देख क्या हो गया मेरे को यार, क्या खिला दिया बुड्ढा, मेरे को पूरा खून का उल्टी हो गया इधर यार। मम्मी मुड़ के बोली क्या खून, क्या उल्टी, क्या बुड्ढा बोल रहे? तो कुछ भी तो नहीं है उधर। मैं मुड़ के देखा साहब, उल्टी गायब, बुड्ढा गायब, खून गायब। मेरा गांड फट गया साहब। मैं मम्मी को बोला मम्मी अपन घर पे जाते हैं, मेरे को बहुत डर लग रहा है मम्मी, अपन घर पे जाते हैं। फिर हम लोग घर पे गए साहब। घर पे जाने के बाद मैं मम्मी के लिए बिस्तर बिछा दिया और मैं खाट पे सो गया साहब। खाट पे सोने के बाद ना साहब, मेरे को मेरे आका का फर्स्ट टाइम साउंड आया साहब, फर्स्ट टाइम। मेरा आका मेरे को बोला मारी संडी को मारी, इसका बच्चा गिला मुझे। तो बोला ऐसा कैसा मारेगा, हाँ ऐसा कैसा मारेगा, माँ अपना बचपन से बड़ा किया अपने को। फिर वो मेले वाला बुड्ढा आ गया साहब, मेले वाला बुड्ढा आ गया। बोलो इसको नहीं मारा ना, छोटे भाई को मारेगा, मेरे छोटे भाई को। ऑप्शन नहीं था अपने पास साहब, ऑप्शन नहीं था अपने पास। मैं चाकू लिया, फट दिया साहब, उधर के उधर, बात खत्म। अपने ऊपर अजर रहता है ना साहब, अपने ऊपर अजर रहता है ना साहब। अजय रक्षक है मेरा साहब, हमारा रक्षक है। अजय क्या करता है अभी कैसा बताऊं आपको? अजय क्या करता है ना साहब, जो भी मेरे काम के बीच में आता है ना साहब, मेरे को परेशानी देता है ना साहब, अजय सीधा उसके दिमाग के अंदर ही घुस जाता है। अजय दिमाग के अंदर घुस जाता है, फिर आदमी को ऐसा साहब पूरा पूरा बुखार चढ़ जाता है दिमाग में, पूरा ऐसा सिर दुखने लगता है, और फिर आदमी 2 मिनट के अंदर ऑफ। अजय चांस देता ही नहीं है। और अगर मैंने काम नहीं किया ना साहब, मेरे छोटे भाई को मारेगा, मेरे छोटे भाई को। ऐसा कैसा मारने देगा मैं, ऐसा कैसा मारने देगा मैं? काय मूर्खपणा लावलाय पाटील, कोणाला आणलं रे तू? हा? अरे सर त्याने सांगितलं केलं सर, जाम फेमस आहे तो, अरे दुसऱ्यात गेला फेमस। तेरा आका कौन है बे, आका कौन है तेरा? हाँ अजय कभी उसका नाम नहीं बताता है सर, अजय कभी उसका नाम बताया नहीं है। अजय बोलता है तेरे को नाम से क्या करने का है, तू अपना काम करना। तो बोला ठीक है। अजय सिर्फ इतना बताया मेरे को, अजय सिर्फ इतना बताया कि वो आका ना साहब मेरा इतना सा है, इतना सा, फिर भी मेरा गांड पूरा मार के रखा है साहब, पूरा मार के रखा है। कैसा ना साहब, मेरे को भी उससे बहुत डर लगता है, पूरा बहुत डर लगता है। मेरी माँ ना मेरे को बचपन में इसका कहानी सुनाती थी। ये ना शैतान का दरबारी में से है, शैतान का 12 दरबारी में से। हाँ, शैतान का सिर्फ 12 दरबारी है साहब। और इसका खूबी क्या है ना साहब, ये अजाद बच्चे का प्रेत खाता है, अजाद बच्चे का प्रेत खाता है, और इसको हर 10 दिसंबर को मुझे खिलाना पड़ता है। हाँ, उतना ही करता हूँ मैं सर, और कुछ नहीं। जाऊ दे, मैं सुखिया धंधे में नहीं आ रहा बाबा। त्यागी तुझे कल यानी 10 दिसंबर को कोर्ट में लिया चला जाएगा और तुझे वहां फांसी की सजा सुनाई जाएगी, समझा? हाँ कल। एक मिनट सर, एक मिनट। मैं क्या आपको चुतिया लगता है क्या साहब? मैं क्या चुतिया लगता है कि आपको इधर आके ऐसे सरेंडर करेगा? अब टाइम देखो साहब, टाइम देखो 11:59। आज 9 दिसंबर है साहब, आज 9 दिसंबर है। कल जाके मेरे को औरत फाड़ने का है, इतना बड़ा काम करने का आपको मालूम नहीं क्या साहब? अभी तो बताया ना मैं आपको। हाँ, अपना सिर्फ 1 मिनट रुको साहब, 1 मिनट रुको, आपको कुछ तो मजबूत होने वाला है। 1 मिनट रुको। अब कैसा साहब, बोला था ना मैं आपको, कुछ तो बहुत मजबूत होने वाला है आपको। मेरे काम के बीच में नहीं रहेगा साहब, अजय जान मार के रखता है। रुको, तो कुछ तो करता है। अब मैं जा रहा है आपके खुशहाली को बैठने को। अभी जा रहा है मैं, वही है साहब, बीसी वही है, बोल के रखा था। और आप भी सुन लो, मेरे काम के बीच में आए ना, पकड़ के मारेगा और भाग भी नहीं पाओगे आप, पहले बता के रख रहा हूँ। आ रहा है मैं अभी 10 दिसंबर को, रुक जाना मेरे लिए, कहीं जाना नहीं। Just give me a sec. Been out here all day. All right. So you want to know why we're out here?
thousands of us marching because it's not cleared. Okay. So let me ask you a question. Have you ever lost someone close to you who died because they couldn't breathe? They were fighting for it. Yeah, no shit, Sherlock. Everyone's breath stops when they die. Have you lost someone who fought for it? Well, I have. See, a couple summers ago, my family, we went on this trip. We spent the entire time hiking, camping. Our last day there, we were kayaking on this beautiful glacial lake. I mean, it was so damn beautiful. It's the kind of trip in nature that makes you rethink your entire existence in a good way. And all of that changed in 1 minute. See, that's how long someone can breathe underwater. So when my uncle's kayak tipped over, the undercurrent took him before we even knew it. I mean, there was nothing anyone could possibly do. It was already too late. And I think about that minute a lot. It haunts me. Like, what were his thoughts? Did he call out for help? Was he scared? I mean, at some moment, he must have known, this is it. This is how I'm gonna die. So when I saw that video, I could tell George Floyd knew he was gonna die. He didn't think it, he knew it. I mean, think about it. A cop kneeled on his neck for 8 minutes and 46 seconds. People watched it, people were there, people filmed it, people could have helped him. The cops were right there, sworn to serve and protect. They just stood by and let it happen. I mean, what the actual fuck? They let it happen. It's training. That's what he was trained to do. Okay, don't you see that makes it worse? I mean, fuck it, think about it. Boom, let's do it. Now, pushing in, you are draining the air from someone's lungs. Literally. Keep going. He's not resisting. He's not protesting. He's begging. He's pleading for you to stop. He's calling out for his mom. He's saying, I can't breathe. But wait, you got 7 minutes to go, so keep grinding. I mean, fuck, what did you think was gonna happen? You think people would see that video and that they would just go home? That they wouldn't hit the streets? That the streets wouldn't begin to speak for themselves? I mean, it's not just about George Floyd. He's just the straw that broke the camel's back. All right. Let me tell you this way. I'm in love with the Black man. And you know what the hardest part of our relationship is? Is when he leaves. Those 20 minutes are a nightmare for me because I have no way of knowing if he's gonna get home. And I mean, those are just 20 minutes for me. But that's his entire life. I mean, if my kid goes to the corner store to get an iced tea, will he even make it home? If my brother gets pulled over for speeding, will he get a ticket or a bullet? When my sister works as an EMT all day, is at home, sleeping in her bed, will the police knock down her door and shoot her for no reason at all? I mean, you think I'm exaggerating, you think these are fictions, but they aren't. They're real people who turned into news clippings. And now, George Floyd, Breonna Taylor, Elijah McClain, their names on my stupid sign. I mean, it's gotta stop. It's gotta stop, and that's why we're out here.
You know, what I'm wondering is why you're wondering why we're out here. It's pretty obvious. All right. I got one more thing to offer you. It's a story my grandma used to tell me when I was a kid about these monkeys off the island of Koshima. Their diet consisted of sweet potatoes, but they were so afraid to go into the water that they would eat them straight from the dirt. I mean, they tasted disgusting. Until one day, this one brave monkey went into a nearby stream. She washed the potato and ate it, and it was fucking delicious. So she decided to teach everybody how to do it. 2 years later, 99 monkeys had joined suit. And when the 100th did, something amazing happened. Spontaneously across the sea, colonies of monkeys started doing the same thing. Scientists call it critical mass. And so you see, that's why we're here. Moral of the story? Well, for one, you need to learn how to wash your sweet potatoes. And two, even animals know that they deserve better than dirt. Hello, Sam. Hello, Sam. Hello, Sam. I would like some potatoes, please. Yes, and some peas. Okay. Hello, Sam. I would like some potatoes, please, and some peas. Okay. Hello, Sam. I would like some of your potatoes, please. 1 kilo, and some peas as well. Yeah. Make that 2 kilos. Actually, no, make that 1. I don't think I can carry all that. No, I've got some meat, thank you. I've got a nice leg of lamb sitting in the freezer. You know, usually on Thursdays we go out to eat, but Patrick's tired, so we're staying in. Sam, now I know it's not typical, but if I were to cook the lamb straight from the freezer, would I be okay? Perfect. Oh, yes, Patrick would love some of your cheesecake. 2 slices. Yeah, that's good. 2 slices. That's all. Okay. Oh, that looks great. Thank you for everything. Good night, Sam. Patrick, I'm home. You're gonna love the cheesecake that Sam sent for you. Patrick. Patrick! Oh no! Oh my God! Oh my God! He's not breathing! He's not breathing!
Detective Jack Smith. Jack, it's Patrick. I think he's dead. It's Mary Maloney. I'm at home, of course. I don't know, I got home and there's all this blood and he's not breathing and yes, please, yeah. Yes. Please. Where's the body? All right, let's go. That's a whole lot of blood. Any signs of the weapon? Guess we're gonna have to start a search then. All right, well, call the forensics. We're gonna have to take some samples around here. And Charlie, you round up the boys and tape off the neighborhood. We're gonna have to alert the residents. Can't let anybody out. Maybe even send out an Amber Alert. And oh, Mary, you're not supposed to be here. Are you all right, Mary? Oh God. Okay, you're not okay. Okay, I'm holding on to you. Just take it easy. Just walk with me. We're gonna okay, we're gonna take you to the kitchen. You're just gonna sit down. All right, Mary. Just slow and steady. All right, walk with me. Keep breathing. Come on. There you go. Right here. Yeah, just sit right down. Okay. All right. You're good. I'm right here. Just keep breathing, okay? Just take it easy, Mary. She seems to be in a state of shock. You boys carry on. All right, Mary. How are we doing? Can I get you anything? Water? Juice? Sure. Okay. Well, I'm terribly sorry for what has happened. I really have no words. But Mary, whoever's done this, I'm gonna find that son of a bitch for you. You have my word. Now, this might be slightly tough for you, but I still do have a few questions for you. Just some standard procedures. I know you'll understand. Just bear with me and take your time with them. Okay, Mary? Now, I need to know exactly where you were before all this happened. Dinner, okay. Lamb in the oven. Oh, okay, all right. Oh, which grocer? Sam, as in from Sam's Deli. On the corner of Victoria Avenue, okay. And then you came back straight home? Okay. Now, what time you reckon that was at, Mary? 7:15. What? 7:30 latest. Okay, noted. Now, that's when you got home and when you saw. All right, okay, that's good. We're done. Okay. All right, well, those are all the questions I had. Thank you for doing that, Mary. Now, you hang in there, and I'm gonna check in with the rest of my team. Yeah, just give me a minute. Tom, Charlie, get back in here. Any leads on the weapon? Did you check the basement? What about the backyard? TV room, living room, hallways, bedroom. You have to comb the entire house, every single corner, boys. You know what they say. If you've got your weapon, you've got your man. What's that? No, Tom, no.
You gotta be kidding me. I know the Maloneys. I've known them for years. I know Mary. That's impossible. She couldn't have. Oh, wait. Do you hear that? Do you hear that beeping sound? What's that? The oven. Oh, you're right. It is on. Yeah, I'll let her know. Mary, I just thought I should let you know your oven is still running. Oh, the lamb. Yeah, it smells great. Okay. Yes, Mary. Well, we were just wrapping up, but sure, go ahead. Mm-hmm. Oh, no. We couldn't help you finish the dinner. That's we're still on duty, but yeah, we'll pass, I think. Maybe another time. But that's very sweet of you. Well, the boys and I are gonna take your leave and head back to the station. The forensics should be here shortly, so make sure you don't touch anything and maybe stay out of the kitchen. Just maybe get away from all this. Now, Mary, do you want me to call Barbara? Maybe she can spend the night here with you. You might feel better. Are you sure? Okay. Well, you know, if you need anything, I'm a call away, and so is Barbara. Okay, well, good night. Take care of yourself. Oh, darling, you're back. Mwah. Let me take that for you. You must be so tired. Can I get you some cheese and wine so you can settle in? You know, I didn't make dinner today. Well, 'cause it's Thursday. Oh, but if you're tired, that's okay. We can stay in. I'm sure I have some meat in the freezer and I could just quickly put something together. Are you sure? Okay. You know, it's such a shame that a police officer as senior as you has to be on his feet all day long. Honey, you know, I know what will make you feel better. Just sit right here. You don't have to move. Just give me 30 minutes and I'll have something ready for you. Just 30 minutes. What are you doing? Okay. Oh, okay. All right, let's just pull this here. Okay. There we go. I'm sitting and I'm listening. What's the matter, honey? What do you mean? Leave? And go where? No, I don't understand, Patrick. Why would you need to send me money for the child when you're gonna be right here with me? Aren't you? Aren't you? No, I don't understand because none of this makes sense. None of it makes sense, Patrick. Why would anyone need to go anywhere? No, you know, I'm just gonna make dinner. I'm gonna make dinner. That's all we need. That's all we need. I'm just gonna make dinner. Yeah.
just gonna make dinner. I'm just gonna make dinner. That's all we need. We just need a meal at home. No one needs to go anywhere. And you and I lie in the freezer. I'm just gonna make that quickly. What's her name? Oh. Her. Hello, Sam. Right. Yeah, sure. Right. So we'll go by order. And रघु सर, आपको जो जैसा लगा परफॉर्मेंस के बारे में ऑनेस्टली प्लीज शेयर कीजिएगा अपने थॉट्स. बिल्कुल बिल्कुल. मैं पहले ही मैं कुछ बोल दूं. मैंने कल तकरीबन 7 या 8 परफॉर्मेंस थे. 7-8 तो मतलब कहानियां थी या जो भी था. उसके अंदर बीच में भी बहुत सारे कैरेक्टर्स और वो बहुत सारे थे. आज तकरीबन 9 परफॉर्मेंस देखी मैंने. और कल भी जब मैं देखने के बाद हम बात तो हम कर ही रहे थे, लेकिन कई सवाल मेरे जहन में उठ रहे थे कि आप लोगों ने इतने कम समय में, इतने कम वक्त में और जो बाखूबी ये सब कैरेक्टर कहानियां जो बनाई और निभाई, तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ एक तरह से कि ये कैसे कर पाए होंगे. क्योंकि मुझे जो खास बात लगी, इसमें एक्टिंग की गुंजाइश कहीं मुझे नजर नहीं आई. मुझे ऐसा लगा कोई एक्टिंग कर ही नहीं रहा है. ऐसे बिल्कुल इतनी सरलता से, इतनी ईमानदारी से लगी हुई, तो मुझे कोई एक्टिंग लफ्ज मुझे नजर नहीं आया सब लोगों की परफॉर्मेंस में. ये मुझे लगा कल भी और आज भी तो और भी ज्यादा, क्योंकि कल का जो नशा था आज और नशा बढ़ गया मेरा. तो दूसरी बात ये है कि कल मैंने देखा, दरी ने कल मुझसे एक सवाल भी किया था कि जेंडर जब चेंज हो जाता तब वही आदमी क्या क्या सोच रहा है. अगर आदमी है और औरत में तब्दील हो गया है, तो उस वक्त जो परफॉर्म कर रहा है वो उसकी जहनियत में क्या होगा. तो मैं कल, एक तो मैंने किया नहीं था, मैंने यूनक एक फिल्म में किया था, लेकिन वो तो आधा मर्द और आधा औरत है, तो उसमें इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई. यहाँ पूरा का पूरा शिफ्ट हो रहे हैं इस तरफ, तो ये तो बड़ा मुश्किल सा काम है. क्योंकि भैया जब ऐसी जब आपको परफॉर्मेंस करनी पड़ती है, तो ओवर होने के बड़े चांसेस होते हैं कि आप ओवर कर ही जाते हैं, आप उसको कैरिकेचर बना ही देते हैं, उसकी मिमिक्री कर ही देते हैं. जो कल शायद स्पर्श ने किया था ना, कल जो पहला टीचर जो, हाँ, तो मैं तो देख के मुझे लगा कि कहीं से कैरिकेचर लग ही नहीं रहा है. तो बिल्कुल ईमानदारी से थोड़ी देर तो मैं पहचाना नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि रिकॉर्ड कर रखा है क्या, ये आवाज़ इतनी भारी सी. बाद में मुझे पता लगा कि ये तो भैया ये तो बिल्कुल ऐसे डूबा हुआ शख्स है कि बताना मुश्किल है. तो कल ये सारी चीज़ें मुझे
और बड़ी जो बाखूबी आज भी इतने सारे मतलब 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 परफॉर्मेंस एक-एक कहानी में जो आप कर रहे थे, तो बहुत ही मुझे तो बड़ा मज़ा आया। और मैं यही कहना चाहूँगा कि जिस सहजता से जो इत्मीनान से और कहीं जल्दबाजी नहीं थी, कहीं भाग-दौड़ नहीं थी, कुछ नहीं था, और जो जिस उससे कर दिया, तो ये अब मेरा सवाल है कि ये कैसे किया होगा आप लोगों ने इतने वक़्त में? मैंने तो अपनी बात बता दी जो मुझे लगा। अब आप मुझसे पूछने की बजाय कि कैसे किया, आपने कर दिया, तो आप बताइए कि आपने कैसे किया ये? सर 15 दिन कुछ नहीं होते, 15 दिन कुछ नहीं होते भैया। 15 दिन में तो हम चीज़ों को समझ पाते हैं। और अभी कोई इस तरह के आप प्रोफेशनल वो भी नहीं है, एक्टर भी नहीं है। अभी आपने शुरुआत ही की है, और शुरुआत में आपको ऐसा सिरा पकड़ में आ गया एक्टिंग का या एक्टर का या एक्टर के पेशे का, जो भी कहिए, ऐसा पकड़ में आई है, तो बहुत आपके लिए तो बहुत ही नायाब चीज़ है और बहुत ही नायाब काम है आपके लिए, और बड़ा अच्छा रास्ता आपने इख्तियार कर लिया है। वो कैसे किया वो मैं जानना चाहता हूँ। सर हाँ, स्पर्श है हमारा पहला पार्टिसिपेंट, तो आई विल लेट हिम आंसर क्योंकि सबका प्रोसेस अलग अलग रहा होगा। जी। तो स्पर्श, रघु सर ने जो पूछा, आई एम श्योर यू हैव अंडरस्टूड, एंड वंस यू आंसर दैट देन आस्क योर ओन क्वेश्चन, ठीक है? अभी रघु जी ने भी जब भी कहा कि ये 15 दिन में कैसे कर पाए, पर्सनली मेरे लिए ये स्टोरी हम तैयार कर रहे थे, बैरी सर और हम, हमारी वो जो फ्री बर्ड की जो टीम है, वर्कशॉप थ्रू ये स्टोरी मैंने लिखी थी खुद। और मतलब अभी मैं भी बहुत नया नया हूँ इस एक्टिंग के फील्ड में। मुझे बस मतलब स्कूल में कुछ प्लेस किए हैं मैंने, और इस साल मैं पूरी दिल से जान से एक्टिंग कर रहा हूँ, बेसिकली फिजिकली एंड मेंटली। तो फिर अभी ये जो 15 दिन थे जहाँ हमने रिहर्सल की, उसके पहले भी ये जो कहानी थी ये मुझे बहुत अच्छी लगी थी, और मैंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि मैं कभी लिखूंगा। मैंने कभी सोचा नहीं था मेरी पूरी जिंदगी में कि मुझे कहानी लिखनी पड़ेगी। पर जब भी मुझे वो मौका मिला, तभी मुझे मेरे कैरेक्टर में और अच्छे से डूबने का मौका मिला। और मतलब कल आपने जैसे बताया कि जब भी हम इम्प्रोव करते हैं तो हर एक नया नया दरवाजा खुल जाता है, तो फिर मेरे लिए भी ये एक काफी बड़ी चीज थी। जब भी मैंने वो कहानी लिखी, जब भी मैं उस कैरेक्टर पे और डिटेलिंग में रिसर्च कर रहा था, तभी और एक ऐसे नए नए दरवाजे खुल रहे थे। एंड इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल थिंग फॉर एन एक्टर, आई थिंक, क्योंकि देन यू गेट टू परफॉर्म इट एंड देन यू हैव इट फॉर लाइफ। एंड उसके बाद बहुत सारे चेंजेस, जब भी हम ये कैरेक्टर प्रैक्टिस कर रहे थे शो के लिए, तभी बैरी सर ने और पूरी टीम ने काफी चेंजेस लाए। कहाँ कुछ कम पड़ रहा है तो वो बता दिया, इफ समथिंग हैज टू बी इंक्रीज्ड वो बता दिया। तो अभी मैं तो काफी नया नया हूँ, मेरे लिए ये सफर अभी और लंबा जाने वाला है, थैंक्स मतलब होपफुली। और आई थिंक सर हर परफॉर्मेंस को बार बार मतलब काफी घिसाई करी है, ऐसी बात नहीं है ये 2 हफ्ते में। वर्कशॉप में इन्होंने जो डेवलप किया था वो तो एक रॉ मटेरियल हमको मिल गया था। तो अभी यहाँ पे जो पीसेस लिए हैं वो वाले पीसेस थे जिसमें सबको लगा कि हाँ भाई इसमें पोटेंशियल है, हम इसको आगे डेवलप कर सकते हैं, मटेरियल स्ट्रांग है, परफॉर्मेंस स्ट्रांग है। फिर उसके बाद उनकी परफॉर्मेंस को लेके जो घिसाई थी वो हमने रिहर्सल के पीरियड में करी, कहाँ कैसे खड़ा होना है, कहाँ क्या चीज़ वर्क कर रही है, क्या चीज़ नहीं वर्क कर रही है। तो आपकी बात सही है कि कुछ चीज़ें इसमें ऐसी ब्राइट और स्पार्कलिंग थी कि फर्स्ट टाइम एक्टर्स के लिए बहुत 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 तो इसमें आपका ऐसा कौन सा सेंस है जो आपको बहुत मदद कर रहा था? मुझे मालूम है आपके बारे में, इसलिए आप बताइए, फिर मैं बताता हूँ आपको। मुझे मालूम है क्या है। सर स्पर्श से पूछ रहे हैं ना आप? हाँ, स्पर्श से पूछ रहा हूँ, अभी तो वही सामने है। हाँ अभी ये जो अभी सेंस, ये जो कुव्वत आई ना आपके अंदर,
ये चीजों को समझने की या लिखने की या वो क्या है, वो कहाँ से आई, वो कौन सी जगह है, वो कौन सी सोच है, कौन सी चीज आपके जहन में है, आपके दिल में है, जो आपको उस तरफ ले जाती है और बहुत बारीकी से, बहुत गहराई में उतारती है, वो क्या है? आप, मुझे मालूम है, आप बताइए पहले, मुझे मालूम है वो क्या है। शायद मुझे भी वो ढंग से मालूम नहीं होगी, पर जितना मुझे मालूम है मैं उतना बताने की कोशिश करता हूँ। तो फिर हमारी अभी बेसिकली जो जिद रहती है अच्छा काम करने की, और हम जब भी अच्छा काम करने जाते हैं तभी उस अच्छे काम के लिए हम एक पूरी डिटेल्ड रिसर्च करते हैं अपने आप से, खुद से। तो फिर मैंने खुद से वो जितनी ये भी उसी में शामिल है। ये जो रिसर्च करते हैं ये भी उसी में शामिल है। सिर्फ एक ही चीज है, वो है सिंगिंग, आपको म्यूजिक सेंस। हाँ वो तो, हाँ 13 ईयर से मैं सीख रहा हूँ। तो ये जो म्यूजिक सेंस है, जब अगर आपके अंदर है, और मैंने अभी आपका गाना भी सुन लिया, तो ये जो म्यूजिक सेंस है वो ऐसी गहराई तक ले जाता है। आप म्यूजिक के जरिए तो आप कहीं से कहीं पहुंच जाते हैं। तो ये सीधी सी बात ये है, तो इसको बरकरार रखो। मैं ये कहना चाह रहा था कि जो म्यूजिक सेंस है ना आपके अंदर, ये आपको बहुत आगे तक ले जाएगा और यही आपको चीजों में डुबोए रखता है। म्यूजिक के जरिए आप कहीं भी पहुंच सकते हैं, आप किसी भी जगह, अरे ईश्वर के पास पहुंच जाते हैं आप तो। और दूसरी बात छोड़िए, तो ये जो म्यूजिक सेंस है इसको बरकरार रखिए, इससे आप गहराई को बड़े आसानी से, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं भी म्यूजिक से मेरा ताल्लुक है, और म्यूजिक के जरिए ही मैं चीज़ों को बड़े जल्दी, मुझे कई लैंग्वेज समझ नहीं आती लेकिन म्यूजिक के जरिए मैं समझ लेता हूँ। म्यूजिक साउंड से समझ, म्यूजिक या साउंड है, वो साउंड से तो आपके कानों में आ जाता है, और कहीं ना कहीं वो आपके, उसका जो असर है, उसके जो जज्बात हैं चीज़ों के, कहानी के या कैरेक्टर के, वो सब कहीं ना कहीं से वो आपके अंदर आ जाते हैं, और वो धीरे धीरे फिर आप उस पर काम करना शुरू करिए तो वो धीरे धीरे डेवलप होते चले जाते हैं और आपको एक रास्ता सा मिल जाता है। तो ये है, बाकी और कोई फालतू उधर की बात नहीं, सीधी सी बात ये है। All right, I think Sparsh, that answers a lot of your questions because your questions were around Definitely. that. Okay, so I will just add somebody else. Radha, I'm adding. धन्यवाद रघु जी। जी धन्यवाद। अरे मुझे धन्यवाद करना चाहिए, इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस दी। आज धन्यवाद आप लोग नहीं बोलेगा, आज धन्यवाद मैं बोलूंगा सिर्फ। सर ये राधा है डरबन से। हाँ जी। तो राधा कमाल का इन्वॉल्वमेंट था, मैंने देखा, और थैंक यू सर। और बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा था कि आप एक्टिंग कर रहे हैं, और अगर एक्टिंग के आपको पैसे मिल रहे हैं तो आपको पैसे ना दिया जाए क्योंकि आपने एक्टिंग नहीं की। थैंक यू सर। मेरा सवाल आपसे है कि अगर आप एक नेगेटिव रोल करते हो तो आप उसके लिए प्रिपेयर कैसे करते हो? आप कैसे, हाउ विल यू नॉट लेट योर रियल सेल्फ और योर रियल इमोशंस टेक ओवर? मैंने अपनी जिंदगी में कई, थिएटर में तो कई किए, लेकिन फिल्म में मैंने एक शॉर्ट फिल्म की थी, शॉर्ट नहीं मतलब टेली फिल्म थी, रमन राघव। उसमें 47 मर्डर्स करने थे। ये दूसरा रमन राघव थी, बाद में बनी, पहले मैंने की थी 92 में रमन राघव, और ये श्री राम राघव की फिल्म थी, उसमें 42 मर्डर्स करने थे। अब मैं तो चींटी को भी नहीं मार सकता और मुझे करने थे मर्डर। तो अभी मुश्किल ये कि मैं करूं क्या, मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो इत्तेफाकन मुझे और क्या है कि ये जो किलर होते हैं, जो किलिंग करते हैं, या तो क्या को हमें जो दे दिया जाता है तो हम बड़े आंखें बनाएंगे, इसको ऐसे मारेंगे, वो करेंगे और खत्म कर देंगे। वो दूर से किलर लगता कि ये आदमी को मारता होगा या काटता होगा, तो वो पहले ही से मालूम हो जाए। ये हमारे यहाँ इसी तरह सिखाया जाता है, एक्टिंग ऐसी सिखाई जाती है। अरे आप तो निगेटिव है, तो पहले से सीना तान के खड़ा हो जाता है, जबकि बिल्कुल इसके बिल्कुल उल्टा है, इसके बिल्कुल बरक्स है, ऐसा कुछ नहीं होता। आप अगर ऐसे कर तो पहले दिन पकड़े जाएंगे, एक गलती करते ही पहले दिन पकड़े जाएंगे। तो क्या हुआ कि मैं परेशान हो गया कि इसको करूं कैसे मैं, तो मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो ये श्री राम राघव ने जो जज के सामने उसने कन्फेस किया था, इसने रमन राघव ने, वो मैंने स्पीच पढ़ ली।
उसने जो बोला था वही लफ्ज मैंने पढ़ लिए। वो शायद मैं कभी मौका मिला तो मेरे पास है वो फिल्म में दिखाऊंगा जरूर आप लोगों को। तो उसमें एक था कि उसका किलिंग कब शुरू हुई, वो कहने लगा कि मुझे गलती से मैंने किसी से चाय मांगी तो उसने मुझे नकली दूध का चाय दे दिया, तो बस मैंने सोचा इसका मर्डर करना चाहिए। अब ये मर्डर करना चाहिए तो यहां से मुझे पकड़ में आ गया। तो ये आदमी मर्डर करता था, चाय पीता था, क्या करता था। फिर बाद में और पढ़ा कि मैं वहां गया, फिर उसने ऐसा हुआ, फिर मैंने देखा कि उसके उसमें एक पोटली टंगी थी, उसमें ये था, उसमें 2 रुपए निकले, और फिर 2 रुपए का जब मैं एक गिलास लिया, फिर मैंने 2 रुपए को बेचने गया तो 2 रुपए का वो 4 का नोट हो गया था। तो अब ये उसकी जहनियत, ये मुझे बड़ा अजीब लगा कि ये जो किलिंग करता है, ये करता है तो ये दिखा के नहीं करता, इसके अंदर ही से कुछ उठता है। फिर बाद में मुझे पता लगा कि वो चाहता था कि ये जो ज्यादातर उसने झोपड़पट्टी के लोगों को मारा, कभी उसने चोरी के लिए नहीं किया, कभी कुछ नहीं किया। तो बस वो उस तरह। तो मैं क्या करता था कि जब सुबह जाता तो बगैर नहाए जाता था शॉर्ट उसमें सेट, तो आपके लिए लग सकते हो यार। बिल्कुल कुछ करने की जरूरत नहीं होती थी, मैं बिल्कुल ऐसे चला जाता था और ऐसे मार के आ जाता था, लेकिन दिखता भी बस उतने ही काफी था। तो क्या होता है कि अपने जहन को अंदर से बनाना पड़ता है, तो क्या है उसके लिए रिसर्च वर्क भी करना पड़ता है। और बस यही होता है कि अब ये नहीं कि आपको किलर का आपको तो आप मारने लग जाएं, उसकी जहनियत को पकड़ना बड़ा वो है कि आप उस कैरेक्टर की जहनियत को कैसे पकड़े। तो जहनियत को पकड़ने के लिए एक तो उसकी रूह को पकड़ना बड़ा जरूरी, उसके साथ आत्मसात करना बड़ा जरूरी होता है कि जरा सोचिए तो करता क्यों होगा, उसके जहन में क्या है, ऐसे थोड़ी उठा के मार दिया वो गुस्सा आ गया। तो ये सारी चीजें हैं जो बड़ी महीन सी, अभी आप लोग और करेंगे तो आसानी से धीरे धीरे समझ आती जाएंगी। तो फिर चीजें पहले मुश्किल होती फिर आसान भी हो जाती हैं, और हम अगर मुश्किल को और मुश्किल बना लें तो फिर वो और मुश्किल हो जाती। तो मुश्किल को आसान बनाने का ये तरीका है कि उसको आसानी से किया जाए। हम लोग उस पर बहुत ज्यादा काम करने शुरू कर देते हैं, हम आगे से शुरू करते हैं, हम यहाँ से शुरू नहीं करते। आपने देखा हो जब हम कभी लोग जब रीडिंग करते हैं तो पहले दिन वो कैरेक्टर निकाल लेते हैं पहले दिन से कैरेक्टर, और ये होता है कि उसी दिन से उसका कैरेक्टर वही होगा जो पहले दिन उसने पढ़ा था। तो हमें हमेशा जीरो से शुरू करने चाहिए, कोई भी कैरेक्टर करे जीरो से आहिस्ते 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 सीढ़ी दर सीढ़ी करते करते फिर हमें आगे तक जाना चाहिए। हमेशा याद रखो कि पहले से शुरू करना चाहिए हमेशा, चाहे आपने कितनी भी परफॉर्मेंस कर ली है, कुछ भी कर ली हो, जब भी आप कोई कैरेक्टर करते चाहे वो पहले कर भी लिया हो तो उसको हमेशा पहले से शुरू करिए। ये नहीं कि हमने वो कर लिया है तो बस हम तो ये कर लेंगे, तो 2 मिनट का काम है। कोई 2 मिनट का काम नहीं है। आप दूसरे की आत्मा को जी रहे हैं, आप दूसरे की रूह को जी रहे हैं, 2 मिनट का काम कैसे हो सकता है? उसने पूरी जिंदगी 50 साल 20 साल 25 साल और 100 साल में गुजारी और वो कैरेक्टर बना, और आप 2 मिनट में कर लेंगे, कैसे हो सकता है? राइट सर, थैंक यू सर, थैंक यू। Aman, Simran is sitting right there. Can we ask her how she managed to kill her husband? How did she feel? Yeah. Aman. Yeah. Ask Simran, please. Please, I'll to just join this. Yes, Simran, you heard the question. I did. That's a very heavy question. Yeah, that's that was hard because I don't have a husband, and I obviously, if I had one, I wouldn't kill him. So to understand what she was going through, it's like what Raghu sir was saying. You have to spend time to understand what that character is going through, what their needs are, whether you agree with them or not, whether you agree with their decisions at the end of the day or not. You cannot bring yourself. So I couldn't bring Simran there. I have to think about Mary. What's her backstory? Who is she in love with? What are her needs? How does her husband Patrick see her? What does she want from Patrick? So that helped me. And then I just had to surrender myself to her decision that, okay, she's not happy with him, she has to kill him.
That was my Cool. thought process. Anything you wanted to ask Raghu? हाँ Ji sir, सिमरन बहुत first of all, thank you so much for taking up the time. Shukriya. अरे शुक्रिया आपने आपके लिए इतना एक सवाल है। आपका भी बिल्कुल इतना बिल्कुल वही जो मुझे लगा कि इतनी खूबसूरती से परफॉर्म किया आपने, इतनी खूबसूरती से ज़्यादा खूबसूरती नहीं कहेंगे, एक इत्मीनान जो होता है ना, एक सहजता होता है, एक बहुत नेचुरल तरीके से। और दूसरी बात ये है कि एक्टिंग ना लगना ये बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि जब हम कुछ करते हैं तो एक्टिंग आ जाती है कि हम क्या कर रहे हैं, जी हम उस कैरेक्टर की हम एक्टिंग कर रहे हैं। जैसे आपके जहन में जो एक्टिंग आता है वो एक्टिंग होने लगती। आप में ऐसा कुछ नजर नहीं आया, आपने कैरेक्टर किया है, एक्टिंग बिल्कुल नहीं की। Ease. He means the sense of ease and effort. I understand. Yeah. I'm translating for our viewers also. So yeah. Oh, okay. Sorry. Yeah. Go ahead. Carry on, Simran. What was your question? Thank you so much, Raghu sir. That means a lot. तो मेरा सवाल था कि आपके पास अब इतने सालों के बाद कोई आदत है, कोई प्रैक्टिसेस है जो आप चाहे वो स्क्रिप्ट के साथ हो या तो रिहर्सल के समय जो आप सोचते थे कि काश जब मैं स्टार्ट कर रहा था तो वो प्रैक्टिसेस मेरे पास होते, या वो जो आदतें आपके पास? मेरी आदतें वही पुरानी आदतें हैं जो मैं बचपन से जो आदतें पड़ी हुई हैं। मैं आपको एक छोटा सा एक किस्सा बताऊं, ये आदत पड़ी कैसी और क्या आदत थी। अभी इससे पहले मैंने म्यूजिक की बात की थी। तो ये क्या होता है कि एक कहते हैं ना कि आप जो चाहते हैं वो मिल ही जाता है, रास्ता मिल ही जाता है। एक तो मैं बिल्कुल कभी जिंदगी में कंफर्टेबल जोन में जीना नहीं चाहता। मुझे हमेशा दिक्कतें परेशानी बड़ी अच्छी लगती है, क्योंकि ये एक्टर का पेशा ये है कि जब तक हमें दिक्कतें परेशानी, हम वहीं सीखते हैं। अगर हमें सब कुछ दे दिया जाए तो हमें सीखना, हमें कहीं ज़रा सी आराम की ज़िंदगी अगर हमें मिल जाए तो मुझे दिक्कत होने लगती, परेशानी होने लग जाती है। फिर मुझे ऐसा लगता है कि अभी आप कुछ करने को नहीं, सब कुछ तो है आपके पास, बिस्तर भी है, पैसा भी है, सब कुछ है, तो अभी आप क्या करना है। फिर ये एक्टर का पेशा आपके साथ झूठ बोलने लग जाता है। तो मैं हमेशा बिल्कुल कंफर्टेबल जोन में जाना नहीं चाहता, वो लाइफ जीना नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ हमेशा कुछ करता रहूँ, उसमें दिक्कतें आती रहें, परेशानी आती रहें। क्यों? जब तक आप परेशान नहीं होंगे, जब तक आपको में दिक्कतें नहीं आएंगी, तकलीफें नहीं होंगी, आप सीख नहीं सकते। ये हम लोगों को सुबह जब हम स्कूल पढ़ने जाते हैं, जब हमारे पहली क्लास में जब नाम लिखाया जाता है तो स्कूल की घंटी पहले बजती है, वहां से तकलीफ शुरू हो जाती है। अगर उसको आप तकलीफ समझ के स्कूल जाना छोड़ देंगे तो आप तो घर में बैठे रहेंगे। तो ये जो तकलीफ बड़े मजेदार, और ये एक्टर का यही मजा है इस पेशे में, हमारे एक्टर के पेशे में, कि हम लोग हमेशा कुछ खोजते रहें। और वो तो मैंने एक तो बहुत सारे शौक पाल लिए हैं। मेरे पास म्यूजिक के सारे इंस्ट्रूमेंट हैं, मैं उनमें डूबा रहता हूँ। ये नहीं तो कहीं मैंडोलिन बजा लेता हूँ, कहीं सितार है मेरे पास फ्लूट है मेरे पास, हारमोनियम है मेरे पास, वो है, कभी म्यूजिक कर लिया, कभी गाना कर लिया। क्योंकि करने को इतना, मुझे तो ज़िंदगी बड़ी छोटी सी लगती है। ऐसा लगता है इतना कुछ पड़ा हुआ है थिएटर में कि करने लिए अगर मैं 10 जिंदगियाँ और जी लूँ तब भी बहुत कम है। और हमेशा खाली लगता है, ऐसा लगता है ये है। अभी आप लोगों की परफॉर्मेंस देख के मुझे लगता है कि मैंने कभी कुछ नहीं किया, आप लोग मुझसे आगे। सच ज्योति, ये वाला इत्मीनान बहुत देर के बाद आया था मुझे, जो आपने किया परफॉर्मेंस बहुत देर के बाद आया था। Thank you, Raghu. Thank you. Is Lavin there, Aman? Lavin. Thank you. Let me check, sir. तो सिमरन ठीक, बहुत बढ़िया, thank you. That's not only good advice for an actor but for me as a person, so thank you. हाँ जी लविन, नमस्ते सर। नमस्ते सर। कल का हर हर महादेव जो आपने शुरू किया, और हर हर महादेव पे जो आपने अपने जज्बात दिखाए कल आज, दोनों बहुत बखूबी। और तो बस ये है कि बताइए मैं कैसे किया कैसे, मैं कुछ आप मुझसे मत पहले मेरे किया कैसे होगा?
सर आपने कब कब शुरू किया था एक्टिंग करना, मतलब एक्टिंग करना नहीं, मतलब परफॉर्म करना? एक्टिंग लफ्ज में तो इसको बिल्कुल अपने उससे निकालना चाहता हूँ। अच्छा जी जी सर, मुझे तो 9 साल हो गए अभी तो। 9 साल पहले मैंने शुरू किया था सर, थिएटर के साथ अच्छा, ही शुरू अरे किया वाह। था। तो उसके बाद से कर ही रहा हूँ। और अभी जो ये हर हर महादेव भी किया था, ये मैं बहुत दिल से करना चाहता था कि सबको पता चले कि हर हर महादेव क्यों बोलते हैं। ये बहुत ही मेरे हार्ट के बहुत क्लोज था ये परफॉर्मेंस। और ये जब मैंने फ्री बर्ड्स का वर्कशॉप किया था तब मुझे मौका मिला कि इसको एक, मुझे एक्चुअली रियलाइज हुआ कि मैं इसको एक स्टोरी में फॉर्म करके परफॉर्म कर सकता हूँ। और इतने कुछ इसमें मैंने इफेक्ट्स भी ऐड किए थे ताकि लोग उसको रियल में फील कर सके। बिकॉज आज का सिनेमा मुझे ऐसा लगता है कि एक्टिंग के साथ साथ एक्सपीरियंसिंग लोगों को बहुत जरूरी है। कोई भी चीज हो उसको एक्सपीरियंस करना, उनको मतलब उन्हें ऐसा लगना चाहिए कि वो वहां पर है। जैसे वो वॉर फील्ड था तो मेरी कोशिश ये थी थ्रू माय एक्ट एंड थ्रू ऑल द इफेक्ट्स आल्सो कि उन्हें लगे कि वो उस वक्त उस वॉर फील्ड पे है। ये मेरी कोशिश रही थी उस वक्त जब मैंने हर हर महादेव किया था। और आज भी मेरी कोशिश ये थी कि हॉस्पिटल दिख जाए लोगों को। तो उसी की बस वो कोशिश करके मैंने आज परफॉर्मेंस आज भी दी थी। अच्छा, ये तो परफॉर्मेंस की बात हो गई, लेकिन ऐसे माहौल में परफॉर्म करना, हाँ जब अकेले फंसे हुए हैं आप, हाँ है ना, चार दीवारी में बैठ के, आपको कोई रिहर्सल देखने वाले वो भी अगर है कोई अगर बता भी रहा है तो आपको इतने दूर से बता रहा है। क्यों? रिहर्सल आमने सामने करना, डायरेक्टर के सामने करना या जो भी है, वो थोड़ा सा कम से कम एक वाइब्रेशन थोड़ी करीब करीब रहती। इतने दूर से अगर बता दिया जाना तो उसको कैसे आपने हैंडल किया होगा? ये क्या जी सर, ये तो आपने बहुत सही क्वेश्चन पूछा क्योंकि ये सब कुछ सभी के लिए नया है। मेरे लिए भी बहुत नया था। पहली बार कभी ऑनलाइन मुझे बैरी सर समझा रहे हैं, अमन सर समझा रहे हैं सब। तो उसको समझना, वापस उसको उन इनपुट्स को डालना और वो इतने से ब्लॉक में उसको देखना कि हमें इतने से ही ब्लॉक में जो करना है वो करना है। तो वो सब बहुत मतलब उसमें लर्निंग बहुत थी, बहुत कुछ नया नया था क्योंकि कुछ चीजों आपको और बताने में जब आपको कोई बता रहा हो तो टाइमिंग का भी फर्क आ जाता है। जैसे अभी बात कर रहे हैं आपस में तो शायद 1 सेकंड के 50वें हिस्से में आपको मेरी बात वो आ रही, तो ये जो वो आता उससे भी तो फर्क पड़ता होगा ना? बहुत बहुत फर्क पड़ता है सर। वो कल भी जैसे मैं हर हर महादेव कर रहा था, बीच में कोई अनम्यूट या कोई ऑप्शन आ गया था तो मुझे वो उसको अनम्यूट करना पड़ा उस वक्त। तो एक पल के लिए कैरेक्टर के बाहर ही चला गया था जस्ट अनम्यूट करते वक्त, फिर वापस उसमें फॉर्म फुल जोश में आना। तो ये सब चैलेंजेस है यहाँ पे। ये प्रोसेस मजेदार नहीं लगता? मजेदार नहीं लगता? मजेदार लग रहा है सर क्योंकि हाँ, ये है। इसका भी मजा ले लेना चाहिए। हाँ, इसका भी मजा आ रहा है एक्चुअली में। हाँ, मैंने कभी रियलाइज नहीं किया था कि इसमें भी मजा आ सके, बट ओके। बहुत ये वर्कशॉप करने के बाद ही मुझे समझ में आया कि ये प्रोसेस में भी मजा आ सकता है। और आज जो था, आज की जो परफॉर्मेंस कौन सा था? ये जो पान मसाला पान मसाला, यस, पान मसाला, पान, वो तो बहुत ही कमाल का था, बहुत ही। तो पान मसाले से आपका ताल्लुक है? नहीं, मैं तो नहीं खाता पान मसाला। सिर्फ वो पान मसाले के ऊपर, गुटखे के ऊपर जो तस्वीर बनी रहती है, मुझे लगता है उसको देख के आपने ये सब कर दिया है क्या? नहीं सर, ये बैरी सर का गिफ्ट है मुझे। ये बैरी सर ने स्टोरी गिफ्ट की है। पान मसाले गिफ्ट किया बैरी ने? थैंक यू लविन, थैंक यू सर। सर, अनीशा, अनुश्री, सोनिया, मारिया, एक कॉमन सवाल है सर एक्टिंग से रिलेटेड। सोनिया, तुम पूछना चाहोगी? तुम्हारा, मारिया और अनुश्री का काफी सेम क्वेश्चन है। नमस्ते सर। तो हम लोगों का क्वेश्चन ये था कि जब आपको एक इमोशन से दूसरे इमोशन में स्विच करना होता है, बहुत जल्दी करना होता है, तो आपका क्या प्रोसेस रहता है? अभी वो जो आपका था प्रैक्टिस थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है। नहीं, क्या है कि इसमें बड़ा एक तो अभ्यास की बात होती है, प्रैक्टिस की बात होती है, और अभी तो आपने शुरू कर, धीरे धीरे फिर वो आदत बन जाती है। तो है मुश्किल काम है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको अपने पूरे वजूद को चेंज करना पड़ता है। आपकी जो पूरी आत्मा है, जो आपकी पूरी रूह है, उसको चेंज करके आपको दूसरे में शिफ्ट करना पड़ता है। इसके लिए सबसे बेहतर है आप
प्राणायाम और ये मैं जब एनएसडी में था तो मुझे सबसे पहले उस वक्त पता लगा, तो मैं उससे शो से पहले अपने आप को बिल्कुल अपने में ले आता था। तो योग इतना इतना आपको मदद करेगा, इतनी हेल्प करेगा कि अगर आप, लेकिन उसमें सबसे बेहतर यही है, ये एक तरह की मेडिटेशन ही है कि एक में दूसरे में शिफ्ट होना ही मेडिटेशन है एक तरह से। तो ये उससे बड़े जल्दी आसानी से आपको जल्दी शिफ्ट होने की आदत बन जाएगी या प्रैक्टिस हो जाएगी, लेकिन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, थोड़ा सा उसमें डूबना पड़ता है, सीधी सी बात ये है। और डूब के कितने जल्दी आप निकल के फिर डूबना आ जाए आपको, क्योंकि अगर आधा आधा करेंगे, हो सकता है आपने एक परफॉर्मेंस ये की, एक परफॉर्मेंस एक कैरेक्टर आप ये करें, दूसरे में शिफ्ट हो रहे हैं, और शिफ्ट होने के बाद यहाँ तो आप ठीक से डूबे हुए थे, फिर यहाँ भी शायद ठीक से डूबे, लेकिन दोबारा से रिपीट फिर से इसमें आए तो फिर शायद थोड़ा सा कम पड़ जाए। तो ये आपको दोनों की गहराई का अंदाजा भी होना चाहिए कि हम यहाँ कितने गहरे थे और यहाँ कितने गहरे थे। तो ये बस वही है कि अपने अंदर, अपने दिल में, अपने जहन में ये सारी चीज़ें, इसका अभ्यास होता है। इसका सबसे बढ़िया बेहतर तरीका है म्यूजिक, सबसे बेहतर है म्यूजिक। आप म्यूजिक से जज्बातों की गहराई तक इतने आसानी से पहुंच सकते हैं, सबसे बेहतर है। उसमें आपके पास टाइमिंग भी है म्यूजिक में, उसमें आपके पास जज्बे भी हैं, उसके म्यूजिक में आप सब कुछ तो है, कितने तरह की जज्बात हैं वो सारे म्यूजिक में हैं। तो मैं तो जब कभी कोई कैरेक्टर करता हूँ तो मैं उस तरह का, उस हिस्से का या उस दायरे का म्यूजिक मैं डूब जाता हूँ और मुझे बस मालूम पड़ जाता है कि यहाँ ये है। म्यूजिक में सब कुछ है, कितनी क्या नहीं है, सब कुछ है, पूरा ब्रह्मांड, पूरी सृष्टि है जज्बातों की म्यूजिक में। थैंक यू रघु सर। ओके, बहुत बढ़िया आपने जवाब दिया, बहुत कुछ सोचने के लिए है। अनीशा का सवाल था। अनीशा, वुड यू लाइक टू आस्क परफॉर्मेंस एंजाइटी के बारे में? सर, इनको घबराहट होती है परफॉर्मेंस करते हुए, यही है कि आपको कभी लगे कि आप जितने भी आप जो बोल रहे थे कि आप उन जज्बातों की गहराई में घुस चुके हैं और आपने प्रैक्टिस कर लिया है, पर आप जब आपको एक्चुअल परफॉर्मेंस देना है तो आपको लगता है कि आप उसको जस्टिस नहीं दे पाओगे उस टाइम, और उसकी वजह से आप थोड़ा उसको नर्वस वो हो सकते हो। और आपने अपने आप को ही देखा है कि कभी आपने अच्छा किया है और कभी इतना अच्छा नहीं किया है, तो वो जो वेवर होता है उसको कैसे आप स्टेबलाइज कर सकते हो? एक्चुअली ये आपको थिएटर में इसका मजा आपको मिल जाएगा। इसमें आप धीरे धीरे आप अपने आप को सेटिस्फेक्शन की तरफ आप जा सकते हैं। आप धीरे धीरे आप इसमें आप उतरने की आदत डाल सकते हैं। फिल्मों में और टीवी में इसमें आप नहीं कर सकते। इसमें तो आपको एक आपने परफॉर्मेंस कर दी, उसके बाद सुधार की कोई गुंजाइश नहीं होती है, जो कर दिया वो कर दिया। तो सिर्फ वही है कि आप अगर आप में प्रैक्टिस करने की आदत है और प्रैक्टिस कर लें अच्छी तरीके से, क्योंकि हमारे यहाँ सबसे हमारे जो काम करने का तरीका है, यहाँ जो काम करवाने का तरीका है, उसमें इतना कम वक्त देते हैं कि आपको इस वजह से मैं कल भी कह रहा था कि मैं तो आज तक अपनी किसी परफॉर्मेंस से आज तक सेटिस्फाइड नहीं हुआ, खासतौर पर फिल्मों में, क्योंकि हमेशा बहुत सारी कमियां नजर आती रहती हैं मुझे। तो ये तो अच्छी बात है, और अगर आपको लग जाए कि हाँ ये जो कर लिया ग्रेट कर लिया, तो फिर ये आपकी कमी है। तो आप कभी खुश तो होने नहीं चाहिए। मैं तो ये चाहता हूँ कि बस तड़पते रहिए, छटपटाते रहिए, चीजों को ढूंढते रहिए। Thank you, sir. Thank you, Raghu, sir. I think Maria Anushri, that answers a lot of your questions as well, right? Yes, sir. So that's that. So we've included everyone, Barry, sir. Everyone's questions are now answered and taken care of. That's great. Though we could, I can anticipate that we induct Raghu into giving more films, more masterclasses on film, where we answer these questions that young people, beginning actors have. It's very important. Yeah. Raghu, if you're agreed. और फिल्म बनाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल।
Good. हमने Thank you very much. बैरी ने हमने जो सलाम बॉम्बे जब फिल्म बन रही थी उससे पहले वर्कशॉप की थी। उस वक्त वर्कशॉप बहुत ही ज़रूरी है ख़ासतौर पे हम लोगों के लिए। तो मेरे ख्याल से सलाम बॉम्बे की जो वर्कशॉप हुई थी वो पहली फिल्म के लिए वर्कशॉप की गई थी, जो 6 हफ्ते हमने शायद बैरी 6 हफ्ते की थी वर्कशॉप। 6 हफ्ते, हाँ 6 हफ्ते। और सड़क से जो बच्चे उठा के 130 बच्चे लेके आए थे। अभी कोई गब्बर सिंह की एक्टिंग कर रहा था, कोई राजेश खन्ना की एक्टिंग करता था, कोई कुछ करता था, और उनको सबको नीचे उतारना था। तो ये थिएटर में ही वो जो थी कि आपने देखी होगी मेरे ख्याल से दादा सलाम बॉम्बे, वो धीरे धीरे उनको ऐसे समेटा गया, वो तो फिर हमारे ऊपर हावी होने लग गए थे। इतने नेचुरल हो गए कि हमें डर लगने लग गया था उनसे। तो ये बैरी की ग्रेटनेस है, धीरे धीरे नीचे उतार के और जगह पे लेके आते हैं ये। तो बस इसीलिए तो मैं कायल हूँ बैरी का, इनके जो सिखाने का जो अंदाज है, जो सलीका है, जो तरीका है। और तो बस और क्या कहूँ, मुझे बहुत ही कल भी बहुत मज़ा आया, और परफॉर्मेंस देख के तो आया ही, और आप लोगों से मिलके भी, और आप लोगों के जो जज्बे थिएटर के लिए उसको देख के भी मुझे बड़ा मज़ा आया। और मैं तो चाहता हूँ कि हम लोग कुछ थिएटर ओरिएंटेड कुछ यहाँ वर्कशॉप उस तरह करें, और कुछ प्ले करें, कुछ उस तरह करें मिलके, कोई म्यूजिकल प्ले करें, और वो सब, ताकि एक वो भी मज़ा आप लोगों को उस तरह का म्यूज़िक जो पहले हुआ करते थे भारतीय थिएटर और रासलीला, नौटंकी, ये हम लोग कहते ज़रूर है कि ये तो नौटंकी है और ये तो ये है वो है, लेकिन ज़रा उसके अंदर घुस के देखिए, इतना मज़ा आएगा, इतना मज़ा आएगा। तो मैं तो चाहता हूँ कि जैसे ये लॉकडाउन हो तो सामने बैठ के और साथ रह के कुछ इस तरह का हम एक दूसरे के हिस्सा बने, तो बहुत मज़ा आएगा। Shalini, is Shalini there? Yes, I'm here. Hi, Barry. Hi, Shalini. Can you just wind up for us, thanking our guests and everyone for their definitely. Namaste, Raghu ji. नमस्ते शालिनी जी। बहुत मजा आया, और सो मच थैंक यू कि आप इतने अपना समय और उसके साथ इतने खुले दिल से आते हैं अपने आप को लेकर हमेशा। तो और इतना जेनरसली शेयर करते हैं अपना एक्सपीरियंस और सब कुछ, हम पहले भी देख चुके हैं। एंड हमेशा there's so much fun to how you put it across. There's so much of fun and so much of रस, इतना रस आप उस के साथ उस चीज को अभिनय हो या थिएटर का प्रोसेस हो, that आई एम श्योर हम लोग सब के लिए वो एक बहुत ही मजेदार चीज बन जाती है। ज्यादातर एक्टिंग को इतना बोझिल बना दिया जाता है और मुश्किल बना दिया जाता है। एंड आई स्पेशली थैंक all our participants. I deeply am humbled by this experience and this journey of being with you guys. I mean, I joined when you had already, you guys had the piece when you came for the rehearsals. And the passion with which you guys worked after that. And I personally understand passion as hard work, as rigor, as detailing. And I mean, you guys would get feedback and you would vanish behind that camera for 5-7 minutes and come back with these master strokes and such transformations. And it was, I mean, I just hope that I can carry some bit of all this in my work in future. And it's been such an enriching experience being with you guys and being back with Barry and Aman in rehearsals. So, and I really thank everyone who joined us today in the evening and generously kept sending comments to us, encouraging us. So thank you very much. And we really hope this was our first effort as the Freebirds Collective. And thank you so much, you guys, for joining us in this journey. And we hope that we continue like this with more fun and more work and more new ideas. Thank you. Thank you very much, everyone. To all our viewers who are interested in doing the Freebirds Collective workshops, we are starting a new round of workshops starting 19th of April. You can find out
by visiting the Freebirds Collective Instagram page or Barry Sir's page called It's Barry John on Instagram or Facebook. So we are starting a new round of workshops, round 4, starting 19th of April. I posted the number on the chat. In case you're interested, you can contact the number. But do visit our Instagram page, the Freebirds Collective, and It's Barry John. It will have all the information about the workshops. Thank you, everyone. Thank you for taking out the time when the IPL has started. And thank you, Raghu sir. Thank you, Barry sir. रघु जी, बहुत मजा आया आपके साथ. Thank you. Thank you. Thank you, Barry, for creating the mahal and the environment somehow for all of us to grow. I just want to say, I don't know what you did, but it was just magic the way it was created, because there's no formal. There is a question, where is the after party? So I can't answer that. So to add to what Anisha said, yes, Anisha, I also feel he has a magic wand. I believe that. Academy. Barry Puttar Academy. That's what it should be. Barry Puttar. Yes. All right, guys, please have an after party in your own places. रघु जी, after party करिएगा हमारे behalf पे, ठीक है? तो बिल्कुल, हाँ. ठीक है. I'll be. Sir, you want to say something? अगले साल after party. अगले साल करेंगे ना पार्टी. एक पार्टी का एक हाँ. ठीक है. All right. इकट्ठा करते जाएंगे और फिर लगातार 1 महीने तक डेली पार्टी. 30 दिन हो जाएंगे ना, तो फिर डेली पार्टी. Right, sir. I'll be ending the meeting now in 3, 2, 1. Thank you, everyone. Bye, everyone. Take care. See you guys soon sometime.